تعلیمی بورڈ فیصلاباد نے میٹرک کے سالانہ امتحانات کے نتائج کا اعلان کر دیا۔ 1,73,239 امیدواروں نے 10ویں جماعت کا امتحان دیا۔ 1,37,948 طلبہ کامیاب ہو گئے۔ ڈویژن بھر میں کامیابی کا مجموعی تناسب 79.63% رہا۔ ضلع چنیوٹ نے کامیابی کے جھنڈے گاڑ کر ڈویژن بھر میں پہلی پوزیشن پر قبضہ جما لیا۔ امتحان میں مجموعی طور پر کامیابی کا تناسب 90.61% رہا۔ طالبہ رابعہ فاطمہ سائنس گروپ میں 3rd پوزیشن کی حقدار ٹھہری۔ جنرل گروپ میں بلاول شیخ نے 2nd پوزیشن حاصل کر کے ضلع کا نام روشن کیا۔ تفصیلات بابر منیر کی اس رپورٹ میں دیکھیے۔ میں مجموعی طور پر 10,553 طلباء نے 10ویں کے امتحان میں حصہ لیا۔ 9,563 طلباء کامیاب ٹھہرے جبکہ 990 امیدوار فیل ہو گئے۔ میٹرک امتحان میں 1,448 طلباء نے A+ اور 2,155 نے A گریڈ حاصل کیا۔ میٹرک سائنس گروپ میں ضلع بھر سے 9,646 طلباء و طالبات نے امتحان دیا اور 9,140 طلباء پاس ہوئے۔ جنرل گروپ میں 900 طلباء نے امتحان میں حصہ لیا اور 738 کامیاب رہے۔ مجموعی طور پر کامیابی کا تناسب 90.61% رہا۔ DEO سیکنڈری ڈاکٹر مختار احمد کا کہنا تھا کہ ضلع چنیوٹ کا رزلٹ ابو بورڈ ہے۔ DEO سیکنڈری نے مزید کہا، امتحان میں نمایاں کارکردگی کا مظاہرہ کرنے والے طلباء و طالبات ان کے والدین اور اساتذہ مبارکباد کے مستحق ہیں۔ 10,553 بچے انہوں نے میٹرک کا امتحان دیا تھا، اس میں سے 9,563 جو ہیں وہ بچے پاس ہوئے تھے اور ہمارا جو ہے وہ تناسب 90.61 رہا ہے۔ ڈویژن بھر میں سب سے اچھا ہے، سب سے بہتر ہمارا ہے اور الحمدللہ میں جو اپنے ہیڈز ہیں ان کو اپریشیٹ کرتا ہوں۔ چنیوٹ کے پرائیویٹ تعلیمی ادارے کمز کالج چنیوٹ کی رابعہ فاطمہ نے سائنس گروپ میں فیصل آباد بورڈ میں 3rd پوزیشن حاصل کی۔ فیصل آباد بورڈ میں 3rd پوزیشن لینے والی طالبہ رابعہ فاطمہ نے 1185 نمبر حاصل کیے جبکہ لالیاں کے رہائشی طالب علم محمد بلاول شیخ نے جنرل گروپ میں 2nd پوزیشن حاصل کی۔ کیمرامین محمد رنگدیو کے ساتھ بابر منیر، سٹی 41 چنیوٹ۔ ناظرین آپ کو بتائیں گے تعلیمی بورڈ فیصل آباد کے زیر اہتمام جھنگ میں میٹرک امتحانات کے نتائج کا اعلان کر دیا گیا ہے۔ مجموعی طور پر 25,551 طلبہ امتحانات میں شریک ہوئے۔ 23,142 امیدوار پاس جبکہ 2,409 فیل قرار پائے۔ ضلع میں کامیابی کا تناسب 90.58% رہا۔ تفصیلات اویس خان کی اس رپورٹ میں دیکھیے۔ تعلیمی بورڈ فیصل آباد کے زیر اہتمام میٹرک امتحانات کے نتائج کے مطابق 4,570 طلبہ نے A+، 5,658 نے A، 7,030 نے B، 4,966 نے C اور 914 نے E گریڈ حاصل کیا۔ ضلع جنگ کے 19 سرکاری اسکولوں کے نتائج نہایت مایوس کن رہے، جہاں فیل طلبہ کی شرح 30 سے 58% کے درمیان رہی۔ سب سے خراب کارکردگی کوٹ خیرہ ہائی اسکول کی رہی، جہاں 155 میں سے 90 طلبہ فیل قرار دیے گئے۔ ضلع کے دیگر کمزور نتائج دینے والے اسکولوں میں 16 گگ، کوٹ عیسیٰ شاہ، گڑھ مہاراجہ، شاہ جیونا اسلامیہ ہائی اسکول اور احمد پور سیال گرلز ہائر سیکنڈری اسکول شامل ہیں۔ والدین اور عوامی حلقوں نے اس کارکردگی پر شدید تشویش کا اظہار کیا ہے۔ کیمرامین عظیم احمد کے ساتھ اویس خان، سٹی 41 جھنگ۔ خبر دیں آپ کو، سپریم انجمن تاجران امین بٹ گروپ کا ہنگامی اجلاس۔ اجلاس میں 8 بازاروں کو گیٹ لگانے پر تاجروں نے تحفظات کا اظہار کر دیا۔ تاجر کہتے ہیں اگر انتظامیہ نے مشاورت کے بغیر کوئی فیصلہ کیا تو ہڑتال پر جائیں گے۔ اسی حوالے سے مزید تفصیلات جانتے ہیں فضیل احمد سے۔ فضیل آگاہ کیجیے گا۔ جی بالکل، 8 بازاروں کو گیٹ لگا کر بند کرنے کے حوالے سے آج سپریم انجمن تاجران امین بٹ گروپ کا اجلاس منعقد ہوا ہے، جس میں 8 بازار اور جو 8 گول ہیں ان کے صدور سیکٹریز نے شرکت کی ہے۔ آج اجلاس میں کیا تحفظات ہیں تاجروں کے، اس حوالے سے سپریم انجمن تاجران امین بٹ گروپ کے چیئرمین ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ بٹ صاحب، کیا تحفظات ہیں تاجروں کے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں نے بازاروں کے صدور، گولوں کے صدور اور سیکٹری بلائے ہیں۔ آج بلانے کا مقصد یہ ہے کہ برائے مہربانی، جس طرح کہ آپ نے کچہری بازار کے جو بازار فی الحال بند کیا ہے تو اس کو کہتے ہیں کہ ہم نے دوسرے 7 بازار بھی بند کرنے ہیں، تو برائے مہربانی ہم 8 بازاروں کو جیل نہیں بننے دیں گے۔ یہ کاروباری لوگ ہیں، کاروبار اربوں کا ہوتا ہے یہاں پہ، تو برائے مہربانی ہم نے یہ فیصلہ ابھی کرنا ہے۔ تمام شہر کو، دوسرے کو بھی میں اکٹھا کروں گا، دوسری تنظیموں کو بھی اکٹھا کروں گا۔ ہمارا مقصد یہ ہوا ہے کہ جو دروازے ہیں، جو گیٹ ہیں، ہم بند ہونے نہیں دیں گے۔ اگر یہ بند زبردستی کریں گے تو انشاءاللہ میں تمام شہر کے تاجروں سے، شہر کی تنظیموں سے مشاورت کر کے پھر ہم ہڑتال کا اعلان کریں گے۔ جی چور صاحب، آپ بتائیے گا، آپ کیا کہتے ہیں اس حوالے سے جو آج اجلاس ہوا ہے؟ یہ دیکھیں، آج پورے شہر کے تاجر، صدر اور جنرل سیکرٹری سب، یہ جب سے پاکستان بنا ہے یہ 8 بازاروں کو اتنا تنگ
इस तंगी की हालत में है कि हर बंदा इस वक्त कर्ब में है। जी, आप शेख साहब क्या कहते हैं इस हवाले से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आप देखते हैं कि 8 बाज़ारों में होलसेल का काम है, कपड़े मार्केटों का, करियाने का, हर चीज़ का देखिए साबुन का काम है। मुझे बताएं, लोडिंग अनलोडिंग जब तक नहीं होगी तो होलसेल का काम कैसे चलेगा? मुशावरत के साथ फैसले किए जाएं। जो गेट लगाकर 8 बाज़ारों को बंद करने के हवाले से जो इंतज़ामिया की जानिब से फैसला किया जा रहा है, ताजरों को इसको मुस्तरद किया जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि अगर बाज़ार बंद हुए तो तमाम ताजर तंजीमों से मिलकर फैसला करके हड़ताल की जाएगी। ठीक है फजील, बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, अब आपको बताएं कि जड़ावाला में बेकरी आइटम्स की कीमतें आसमान पर जा पहुंची। गंदम, मैदा और सूजी का सस्ता होना भी फायदेमंद साबित ना हो सका। मैदे और सूजी की कीमत 8,000 से कम होकर 4,000 तक आ गई, जबकि गंदम भी 2200 से 2300 रुपए मन हो गई। इंतजामिया महंगी होती बेकरी आइटम्स पर तवज्जो न दे सकी। तफसीलात इस रिपोर्ट में देखिए। जड़ावाला में बेकरी आइटम्स की कीमतें आसमान पर, इंतजामिया बेबस दिखाई देने लगी। बेकरी आइटम्स में इस्तेमाल होने वाली मसनूआत में खातरखा कमी के बावजूद कीमतों में कमी वाक़या न हो सकी। होलसेलर्स का कहना है कि गंदम, मैदा, सूजी की कीमतों में काफी कमी आई है। मैदा, सूजी का रेट 8,000 से कम होकर 4,000 तक आ गया। गंदम भी मार्केट में 2200 रुपए से 2300 रुपए तक फरोख्त हो रही है। तहसील इंतजामिया की जानब से बेकरी आइटम्स की कीमतों को कंट्रोल करने पर तवज्जो नहीं दी जा रही। बेकरी के आइटम्स हैं, जो बिस्किट, जो आइटम्स आज से 6, 7, 8 माह पहले 1,800 रुपये किलो थी, वो अभी भी वहीं पे हैं। पिछले 2 साल से जो गंदम का रेट है वो बहुत ज़्यादा कम है। अभी भी मार्केट में जो गंदम है वो 2200-2300 रुपये मन है। चीनी के मामला आते हैं, उनकी तरफ गवर्नमेंट इस दफ़ा तवज्जो दे रही है। इसी तरह जो डेयरी की, ये बेकरी की जो आइटम्स है उसके ऊपर भी उनको तवज्जो देनी चाहिए। शहरियों ने इंतजामिया से बेकरी आइटम्स की कीमतों को कंट्रोल करने का मुतालबा कर दिया ताकि अवाम को रिलीफ फराहम किया जाए। कैमरा टीम के साथ अहमद अरसलान, सिटी 41, जड़ावाला। जंग में महंगाई पर काबू पाने के लिए जिले इंतजामिया मुतहरिक हो गई। प्राइस मजिस्ट्रेट की तादाद 80 कर दी गई। 24 घंटे के दौरान 18,588 कार्रवाइयां, 207 गिरफ्तार, 78,000 रुपए के जुर्माने किए गए। नाकिस कारकर्दगी पर मजिस्ट्रेट्स को शो कोज नोटिस जारी कर दिया गया। मज़ीद तफसीलात जानते हैं अवैस खान से। अवैस, अपडेट कीजिए। जंग में बढ़ती महंगाई की सूरत हाल पर काबू पाने के लिए ज़िला इंतजामिया की जानिब से अहम कदम सामने आया है, जिसमें प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स की तादाद में एक बार फिर से इजाफा किया गया है। ज़िला भर में प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स की तादाद जो है वो 73 से बढ़ाकर 80 जो है प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट कर दी गई है, जबकि अब गिरां फरोशों के खिलाफ कार्रवाइयों का सिलसिला भी जारी है। ज़िला इंतजामिया के मुताबिक 24 घंटों के दौरान जो है कुल 207 अफराद को गिरां फरोशी के इल्ज़ाम में हिरासत में लिया गया है। प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स की जानिब से तकरीबन जो है वो 18,588 मकामात के ऊपर छापे भी मारे गए हैं। इन कार्रवाइयों के दौरान जो है वो प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स ने 78,000 रुपये के जुर्माने भी आयद किए गए हैं, जबकि इससे कबल जो है वो गुज़श्ता रोज़ जो है वो 3 अफराद के ऊपर जो है गिरां फरोशी के इल्ज़ाम में मुकदमात का भी इंदराज मुमकिन किया गया है। ज़िला इंतजामिया के मुताबिक महंगाई की सूरत हाल पर काबू पाने के बाद से तमाम तर प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स को हिदायत जारी की गई है कि रोज़ाना की बुनियादों पर उनकी परफॉर्मेंस जो है वो चेक की जाएगी और ख़राब परफॉर्मेंस पेश करने वाले प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स को शोकाज नोटिस भी जारी किए जाएंगे। अवैस खान अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। दूसरी जानिब आपको बताएं कि चिन्योट में मूसलाधार बारिश से जल थल एक हो गया। TMA चौक, फर्नीचर मार्केट, झुमरा रोड, फैसलाबाद रोड, झंग रोड समेत नशीबी इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए। पानी जमा होने से मामूलात ज़िंदगी और कारोबार शदीद मुतासिर हुए। तफसीलात वकार खुबन की इस रिपोर्ट में देखिए। और शहर में 97 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। मूसलाधार बारिश के बायस बड़ी शाहराएं भी पानी में डूब गए। झुमरा रोड, फैसलाबाद रोड, जंग रोड, फैसलाबाद रोड समेत दीगर इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए। बरसाती पानी से ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। शाहराहों पर पानी जमा होने से मुतादिद दुकानें बंद। कारोबारी अफराद को शदीद नुकसान बर्दाश्त करना पड़ा। शहरियों ने बारिश के पानी की इनखला के लिए मौसर इकदाम करने पर जोर दिया। उनका कहना था कि बारिश के बाद मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। चिन्योट की सूरत हाल बड़ी खराब हो गई है। बारिश थोड़ी सी आई है और इस वक्त हम TMA चौक में मौजूद हैं। हालांकि TMA के ऑफिस, DC ऑफिस भी इसी चौक में मौजूद है। ये इतनी इंतजामिया की नाअहली है और गफलत है कि अपने मेन ये शाहरा है इस पे भी पानी इतना जमा है और फिलफौर इन्हें हदायत दी जाए कि ये कम अज़ कम वासा को हिदायत दी जाए कि पानी का फिलफौर बंदोबस्त किया जाए। ये निकासी का इंतज़ाम मोहल्ले में देख ले, गलियों में देख ले, कुछ भरे पड़े हैं, कोई इंतज़ाम नहीं है, बहुत ही नाकिस है। और इस सिलसिले में ये कारोबार ठप हुए पड़े हैं, गाड़ियाँ बंद हो रही हैं और बल्दिया वाले भी इस चीज़ का कोई नोटिस नहीं लेते। बल्दिया चिन्योट की जानिब से निकासी आप के लिए तमाम अमला मुतहरिक और मशीनरी फंक्शन रखी गई है। हमारा टीम के साथ वकार घुमन, सिटी 41, चिन्योट।
रिकॉर्ड याफ्ता मुलजिम की जान के तहफ्फुज़ पुलिस हिरासत करने का केस। दरख्वास्त गुजार खातून के शौहर बारे CPO फैसलाबाद से 30 जुलाई को रिपोर्ट तलब कर ली गई। चीफ जस्टिस हाई कोर्ट आलिया नीलम ने साइला सामा एजाज की दरख्वास्त पर समाअत की। दरख्वास्त गुजार ने खावत मोहम्मद एजाज के पुलिस हिरासत न करने के खिलाफ हाई कोर्ट से रुजू किया। दरख्वास्त गुजार खातून अपने शौहर और वकील वाजिद अली चिश्ती के हमरा पेश हुई। चीफ जस्टिस हाई कोर्ट का कहना है पूरी सोसाइटी में एक लहर चला दी गई है कि पुलिस मुकाबले हो रहे हैं। CCD वही काम कर रही है जो इससे पहले CIA करती थी। मुबैना पुलिस मुकाबलों का खौफ व हरास फैलाया जा रहा है। CCD के खिलाफ धड़ाधड़ दरखास्तें आ रही हैं। अदालतें आइन के मुताबिक फैसले करती हैं। अदालत ने केस की समाअत 30 जुलाई तक मुलतवी कर दी है। मजीद तफसीलात जान लेते हैं। मलिक अशरफ ने ज्वाइन किया है। मलिक अशरफ, आगाह कीजिएगा, मजीद समाअत का अहवाल क्या रहा आज? मलिक अशरफ हमारे साथ मौजूद होंगे। आपको बताएं कि रिकॉर्ड याफ्ता मुलजिम की जान के तहफ्फुज़ पुलिस हिरासत करने का केस दरख्वास्त गुजार खातून के शोहर बारे CPO फैसलाबाद से 30 जून को रिपोर्ट तलब कर ली गई है। चीफ जस्टिस हाई कोर्ट आलिया नीलम ने साइला साइमा एजाज की दरख्वास्त पर समाअत की। दरख्वास्त गुजार ने खावंद मोहम्मद एजाज के पुलिस हिरासत न करने के खिलाफ हाई कोर्ट से रुजू किया। दरख्वास्त गुजार खातून अपने शोहर और वकील वाजिद अली चिश्ती के हमरा पेश हुई। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट का कहना था कि पूरी सोसाइटी में एक लहर चला दी गई है, पुलिस मुकाबले हो रहे हैं। CCD वही काम कर रही है जो इससे पहले CIA करती थी। मुबैना पुलिस मुकाबले का खौफ व हिरास फैलाया जा रहा है। CCD के खिलाफ धड़ाधड़ दरखास्तें आ रही हैं। अदालत आइन के मुताबिक फैसले करती है। अदालत ने केस की समाअत 30 जुलाई तक मुलतवी कर दी। एक दफ़ा फिर आपको अपडेट करते चलें यहाँ पर के रिकॉर्ड याफ्ता मुलजिम की जान के तहफ्फुज़ पुलिस हिरासत करने का केस दरख्वास्त गुजार खातून के शोहर पारे CPO फैसलाबाद से 30 जुलाई को रिपोर्ट तलब कर दी गई है। एक दफ़ा फिर रुख करेंगे। मलिक अशरफ ने हमें ज्वाइन किया है। मलिक अशरफ, आगाह कीजिएगा, अदालत में जो समाअत हुई है उसका अहवाल क्या रहा? जी बिल्कुल, चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस आलिया नीलम की अदालत ने शहरी की मुबैना पुलिस मुकाबले में हलाकत न करने और उसे हिरासत न करने के मुताबिक केस की समाअत हुई है, जिसमें चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस आलिया नीलम ने रिमार्क दी है कि मुलजिम को मुबैना पुलिस मुकाबले में हलाक ना करने का फौरी हुक्म नहीं दे सकते। मजीद ये भी चीफ जस्टिस ने रिमार्क दिए कि किसी के दिमाग में मुबैना पुलिस मुकाबले में हलाकत का बैठा हुआ खौफ भी नहीं निकाल सकते, पुलिस की इन्वेस्टिगेशन का रास्ता नहीं रोक सकते, किसी को पूरी जिंदगी का रिलीफ नहीं दे सकते। तो अदालत ने ये जंका शहरी था जिसने खातून थी जिसने अदालत से रुजू किया था, तो अदालत ने CCPO RPO फैसलाबाद जो है उनसे रिपोर्ट तलब की है 30 जुलाई को। चीफ जस्टिस लाहौर को जिसमें सालिया नीलम ने शनाज बीबी की दरखास्त पर समाअत की। SP जिसमें CCD नासिर पंजोता है और दीगर पेश हुए, जिसमें दरखास्त गुजार ने कहा कि उसका बेटा जो मुकदमात में मुलव्वस है जेल में है, खदशा है कि उसे मुबैना पुलिस मुकाबले में हलाक कर दिया जाएगा, जिस पे अदालत ने ये रिमार्क दिए और CCPO से इस हवाले से रिपोर्ट तलब की है। जी, इस हवाले से CCPO से रिपोर्ट तलब की गई है। मलिक अशरफ अपडेट कर रहे थे। मलिक अशरफ, आप हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। नाज़रीन, दूसरी जानिब आपको बताएं कि चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने एडिशनल IG CCD सुहेल जफर चट्ठा को तलब कर दिया है। अदालत का एडिशनल IG CCD सुहेल जफर चट्ठा और रीजनल पुलिस ऑफिसर फैसलाबाद को पेश होने का हुक्म चीफ जस्टिस का। दोनों पुलिस अफसरान को 29 जुलाई को सुबह 9 बजे पेश होने का हुक्म सामने आया है। अदालत की पंजाब हुकूमत के लॉ अफसर को दोनों पुलिस अफसरान की पेशी यकीनी बनाने की हिदायत भी जारी की गई है। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस आलिया नीलम ने शहरी मोहम्मद रफीक की दरख्वास्त पर हुक्म जारी किया। दरख्वास्त गुजार के मुताबिक मुकदमात में 2021 से बरी हो चुका, फिर भी CCD हिरासत कर रही है। दरख्वास्त में एडिशनल IG CCD RPO फैसलाबाद, इंचार्ज CCD झंग और SHO कोचरा को फरीक बनाया गया है। अदालत ने एडिशनल IG CCD रीजनल पुलिस ऑफिसर फैसलाबाद को तलब करते हुए समाअत 29 जुलाई तक मुलतवी कर दी है। एक दफ़ा फिर रुख करेंगे मलिक अशरफ का। मलिक अशरफ, इस हवाले से भी आगाह कीजिएगा। देखें जी, इस वक्त जो CCD के मुबैना पुलिस मुकाबले हो रहे हैं और बहुत से मुलजमान की हलाकतें हो रही हैं, इस हवाले से इसी तादाद में लाहौर हाई कोर्ट में भी जो मुलजमान के वसा है वो रुजू कर रहे हैं और
लाहौर हाई कोर्ट की ये सजा कर रहे हैं कि उनको जान का तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने का हुक्म दिया जाए और CCD को हरासा न करने का हुक्म दिया जाए। आज भी जंग के ये शहरी हैं मोहम्मद रफीक, जिन्होंने जो CCD के हरासा करने के खिलाफ दरख्वास्त दायर की थी, जिसपे अदालत ने एडिशनल IG CCD सुहेल जफर चड्ढा को और RPO फैसलाबाद को 29 जुलाई को जाती हैसियत में अदालत में पेश होने का हुक्म दिया है। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट की अदालत में जब केस की समाअत का आगाज हुआ तो साहिल जो मोहम्मद रफीक है उसके वकील ने बताया कि जो दरख्वास्त गुजार है उसके खिलाफ कई मुकदमात हैं, लेकिन उन्होंने बरी हो चुका है, लेकिन इसके बावजूद CCD जो है उसे हरासा कर रही है और अदालत से उन्होंने सजा की कि अदालत उन्हें पुलिस को हरासा ना करने का हुक्म दे। तो जो दरख्वास्त दायर की गई थी इसमें एडिशनल IG CCD के अलावा RPO फैसलाबाद जो जंग के CCD के इंचार्ज हैं उनको फ्री बनाया गया और SHO गोजरा को भी फ्री बनाया गया था, जिसपे अदालत ने एडिशनल IG को और RPO फैसलाबाद को जाती हैसियत में पेश होने का हुक्म देते हुए समाअत 29 जुलाई तक के लिए मुलतवी की है। जी, अदालत ने समाअत 29 जुलाई तक मुलतवी कर दी है। मलिक अशरफ अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। बुलेटिन में खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएं और अब आपको बताएं कि चिड़ियोट पुलिस के ज़ेरे इस्तेमाल सरकारी गाड़ियों की इंस्पेक्शन डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर अब्दुल्ला अहमद ने गाड़ियों के इंजन, टायर्स और बैटरियों का मुआयना किया। ड्राइवरों से गाड़ियों की तफसील और मुरम्मत बारे भी दरियाफ्त किया गया। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर की गाड़ियों की देखभाल और बर वक्त मुरम्मत यकीनी बनाने की हिदायत। DPO अब्दुल्ला अहमद कहते हैं कि गाड़ियों की देखभाल में गफलत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। गाड़ियों की बर वक्त मुरम्मत को यकीनी बनाया जाएगा। डिप्टी कमिश्नर टोबा टेक सिंह नईम सिंधु का अताइयों के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म। डिस्ट्रिक्ट ड्रग कंट्रोल बोर्ड का इजलास। CO हेल्थ डॉक्टर काशिफ नदीम ने ADC चीफ ज़िशान लबा मसीह को ब्रीफिंग दी। मज़ीद तफसीलात जानते हैं ब्यूरो चीफ टोबा मुबशिर हसन नकवी से। मुबशिर, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, टोबा टेक सिंह में डिप्टी कमिश्नर नईम सिंधु ने अताइयों के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म दे दिया। इस हवाले से डिस्ट्रिक्ट क्वालिटी कंट्रोल बोर्ड का इजलास हुआ। डिप्टी कमिश्नर की हिदायत पर एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल ज़िशान लबा मसीह ने इस इजलास की सदारत की। इसमें CO हेल्थ काशिफ नदीम ने एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल ज़िशान लबा को ब्रीफिंग दी। इस दौरान बताया कि मुख्तलिफ मकामात पर ये शिकायत मसूल हो रही हैं कि वहाँ पर अताई मौजूद हैं जो प्रैक्टिस कर रहे हैं, जो बिलाशुबा इंसानी सेहत के लिए नुकसानदेह भी हैं, जिस पर एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल ज़िशान लबा मसीह ने सख्त हदायत जारी की हैं कि अफराद के खिलाफ कार्रवाई की जाए। डिप्टी कमिश्नर नईम सिंधु इस सवाल से पहले ही हिदायत जारी कर चुके हैं। ताहम इस मौका पर बताया गया कि ऐसे अफराद जिन्होंने गैर कानूनी तौर पर अपने मेडिकल स्टोर्स बना रखे हैं या प्रैक्टिस कर रहे हैं, उनके खिलाफ कार्रवाइयाँ भी जारी हैं। मेडिकल स्टोर्स को सील भी किया गया, जो स्टोर मालकान हैं उनको जुर्माने भी किए गए। ताहम ड्रग कंट्रोल का जो इजलास था उसमें ये तमाम तर वाज़ेह हिदायत जारी की गई हैं कि गली मोहल्लों देहातों में अगर ऐसे अफराद मौजूद हैं जो क्वैक्स हैं, उनका कोई रियायत नहीं बरती जाएगी। इंसानी सेहत के साथ किसी को खेलने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। मुबशिर हसन नकवी अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, खबर यह है कि पंजाब भर की तरह फैसलाबाद आर्ट्स काउंसिल की जानिब से भी स्टेज ड्रामों के दौरान डांस SOPs पर सख्त इकदाम सामने आए हैं। एक ड्रामे में स्टेज अदाकारा 5 परफॉर्मेंसेज पेश कर सकती है। ड्रामे में 5 से ज़्यादा परफॉर्मेंसेज करने पर थिएटर के खिलाफ SOPs की खिलाफ वर्जी पर एक्शन लिया जाएगा। अपडेट करें आपको कि पंजाब भर की तरह फैसलाबाद आर्ट्स काउंसिल की जानिब से भी स्टेज ड्रामों के दौरान डांस SOPs पर सख्त इकदाम सामने आए हैं। एक ड्रामे में स्टेज अदाकारा 5 परफॉर्मेंसेज पेश कर सकती है। ड्रामे में 5 से ज़्यादा परफॉर्मेंसेज करने पर थिएटर के खिलाफ SOPs की खिलाफ वर्जी पर एक्शन लिया जाएगा। खबर दें आपको, फैसलाबाद लालपुर गैलरिया में ग्री की जानिब से एरी फ्लूट एक्टिविटी का इनेकाद किया गया। शहरियों को बराह रास्त एयर कंडीशनर्स का तजुर्बा फराहम किया गया। शहरियों की जानिब से ग्री के इस इकदाम को खूब सराहा गया। तलहा बाजवा से मजीद अपडेट जानते हैं। तलहा, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त मौजूद हूँ लालपुर गैलरिया में, जहाँ बात करें तो ग्री की जानिब से आज एरी फ्लोट जन नामी जो है वो इवेंट का इनेकाद किया गया, जिसमें शहरियों को बराह रास्त एयर कंडीशनर जदीद टेक्नोलॉजी जिसमें जी बोस्ट जैसी जो है वो टेक्नोलॉजी उसको मुतारिफ कराया गया और बराह रास्त जो है वो नए एयर कंडीशनर से यहाँ पर तजर्बा जो है उनको हासिल किया गया। हमारे साथ जो है वो मुबशिर मुनीर साहब मौजूद हैं। अच्छा, मुझे बताएं कि ये एक नई टेक्नोलॉजी है ग्री की जानिब से, तो क्या कहना चाहते हैं, किस तरह देख रहे हैं शहरियों का रिस्पॉन्स, जैसे कि आप पाकिस्तान भर में भी जो है ये विजिट करवा रहे हैं? जी, पूरे पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह हम ये AC लेके जा रहे हैं। हमारा ये गिरी एरी सीरीज़ जो कि 68 टेम्परेचर तक बड़ा परफेक्ट काम करता है और इसमें जी बूस्ट टेक्नोलॉजी है और इसमें बेसिकली इंडोर और आउटडोर अमूमी तौर पे ऐसा होता है कि ज़्यादातर कंपनीज़ के सेल्फ क्लीन इंडोर होते हैं। हमारा जो आउटडोर है ये सेल्फ क्लीन आउटडोर है। इसमें हेल्थ फीचर्स हैं और रियल T3 है जो कि बाकी जहाँ पे
बाकी तमाम एसी जो कि काम करना छोड़ देते हैं। हमारा ये गृह एसी जो है 68 टेम्परेचर पे भी कांस्टेंट जो है देता है और तमाम शहरियों ने इसको बहुत जो है ना सराहा है। जी बिल्कुल, उनका यही कहना है कि 68 टेम्परेचर में जो गृह की नई टेक्नोलॉजी है वो अपना काम जो है वो यहाँ पे यकीनी बनाती है। हमारे साथ जो शहरी मौजूद हैं उनसे भी जान लेते हैं। अच्छा, मुझे बताएं कि आपने यहाँ पे विजिट किया है गृह के यहाँ पे एरी फ्लोट का जो इवेंट है, तो क्या कहना चाहते हैं, किस तरह माहौल देख रहे हैं अंदर का? जी पहले मैं बाहर खड़ा हुआ था तो काफ़ी मतलब गर्मी थी बाहर, जैसे ही अंदर आया हूँ तो मतलब एक एम्बियंस ही इधर डिफरेंट हो गया है। इसका मतलब वो देख रहा हूँ 4D एयर फ्लो इसका एक फीचर है जो कि ऊपर नीचे हर तरफ जो एयर को स्प्रेड कर रहा है, और बहुत से मतलब 2-3 और ऐसे फीचर हैं जो इसको मुनफरद बनाता है दूसरों से। लाइक इसमें पावर एम्पेयर लॉक का है, हेल्थ का है, और काफ़ी अच्छा एयर फ्लो इसका फील कर रहा हूँ मैं। अच्छा, तो मुझे ये भी बताएं कि आपने यहाँ पे विजिट किया तो बाकी शहरियों को क्या कहना चाहते हैं? जी बाकी इनमें फीचर जो है ना दूसरों से काफ़ी डिफरेंट है, क्योंकि इसका जो सामने वाला इसका शटर है ये जैसे मूव कर रहा है, बाकी में ऐसा नहीं होता। अंदर वाले जो इसके जो हैं वो भी ऑटोमेटिक हैं। मतलब 2-3 ऐसे कई फीचर्स हैं जो डिफरेंट इसको मुनफरद करते हैं दूसरों से। जी बिल्कुल, शहरियों की जानिब से जो है इस इकदाम को खूब सराहा गया। गृह के जो आज अगर बात करें एरी फ्लोट वैन की, यहाँ पे जो है उसको नस्ब किया गया। अगर शहरियों की जानिब से जो है इस इकदाम को खूब सराहा गया। तलहा बाजवा अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, दूसरी जानिब NFC इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड फर्टिलाइजर रिसर्च फैसलाबाद में दाखिलों का आगाज। तलबा ऑनलाइन दाखिला फॉर्म जमा करवा सकते हैं। दाखिला फॉर्म जमा करवाने की आखिरी तारीख 5 अगस्त मुकर्रर कर दी गई है। NFC इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड फर्टिलाइजर रिसर्च में फैकल्टी ऑफ इंजीनियरिंग, फैकल्टी ऑफ कंप्यूटिंग, फैकल्टी ऑफ साइंसेज और फैकल्टी ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट के मुख्तलिफ शोबाजात में दाखिले जारी हैं। ऑनलाइन फॉर्म जमा करवाने की पहली तारीख 22 जुलाई मुकर्रर थी, जिसे बढ़ाकर अब 5 अगस्त कर दिया गया है। डायरेक्टर प्रोफेसर डॉक्टर नजफ अली अवान और एडमिशन इंचार्ज तंजीला समीन का कहना था कि तलबा दाखिले के लिए NFC फैसलाबाद की वेबसाइट पर जाकर फॉर्म मुफ्त जमा करवा सकते हैं। पहली मेरिट लिस्ट 12 अगस्त, दूसरी मेरिट लिस्ट 19 अगस्त और ज़रूरत पड़ने पर तीसरी मेरिट लिस्ट 26 अगस्त को लगाई जाएगी। रेगुलर क्लासेस का आगाज 2 सितंबर से किया जाएगा। बाकायदा क्लासेस के साथ साथ तलबा व तालिबात के हॉस्टल अलॉटमेंट का आगाज भी 2 सितंबर से किया जाएगा। फैसलाबाद झंग रोड से मुंसलिक शहरियों के लिए अच्छी खबर। चौक 68 में 60 बेड पर मुश्तमिल तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल बनाने से मुतल्लिक महकमा हेल्थ एंड पॉपुलेशन ने रिपोर्ट मांग ली है। माली बजट 2025-26 में झंग रोड पर चौक 68 चींबे में तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल बनाने से मुतल्लिक PC1 जमा करवाया गया था। हुकूमत पंजाब ने मंजूर करते हुए ADP स्कीम में शामिल कर लिया था और अब महकमा हेल्थ एंड पॉपुलेशन ने चौक 68 में 60 बेड पर मुश्तमिल हेडक्वार्टर अस्पताल बनाने से मुतल्लिक रिपोर्ट तलब कर ली है। चेक किया जाएगा कि चौक 68 में अस्पताल बनाना मौसर है या गैर मौसर रहेगा। महकमे सेहत इंतजामिया का कहना था कि तमाम शोबों से मुंसलिक टीमें मुतल्लिका इलाके में जाकर अस्पताल के बनाने से मुतल्लिक इसके मौसर या गैर मौसर से मुतल्लिक रिपोर्ट तैयार करेंगे और हुकूमत पंजाब को भिजवाएंगे। तो दूसरी जानिब मेंबर सूबाई असम्बली अमजद अली जावेद ने टोपा टेक्सिंग यूनिवर्सिटी के क्याम की नवीद सुना दी है। अमजद अली जावेद का कहना था कि ज़रिए यूनिवर्सिटी सब कैंपस को अपग्रेड करके यूनिवर्सिटी ऑफ टोपा टेक्सिंग बनाया जाएगा। मेंबर सूबाई असम्बली अमजद अली जावेद का कहना था कि नई यूनिवर्सिटी टोपा टेक्सिंग बेस्ड होगी। कमालिया यूनिवर्सिटी नई टोपा टेक्सिंग यूनिवर्सिटी में जम हो जाएगी। यूनिवर्सिटी ऑफ टोबा के लिए 2000 मिलियन की खसूसी ग्रांट मंजूर की गई है। यूनिवर्सिटी ऑफ टोबा टेक्सिंग के PC1 की तैयारी शुरू कर दी गई है। पंजाब हायर एजुकेशन कमीशन ने यूनिवर्सिटी ऑफ कमालिया के वाइस चांसलर को हिदायत जारी